hello. I have Dr. Shri Vivek Kumar ji. He is an industrialist. He is our trustee on the board of the trust. We have Sapna. She is a manager, Heartcare Foundation of India. We have Dr. K.K. Kalra, who is the director, Heartcare Foundation of India. We have Ira Gupta, the legal affair advisor. We have Dr. Anil Kumar, the Director, Heartcare Foundation of India. We have Saurabh Agarwal, Director, Finance, Heartcare Foundation of India. And then we have Vandana Rawat, a manager at the Heartcare Foundation of India. We have Anil Ahuja ji, Director, Heartcare Foundation of India. Then we have Dheeraj here and we have Deepak here. Both of them are not seen on the front page. They all are managers, respective portfolios at Heartcare Foundation of India. Heartcare Foundation of India is a national trust. We are known for Perfect Health Melas in the city of Delhi. We are known for creating 3 postal commemorative stamps on our events. At this moment, we are working on one single fundamental principle, taking the fear out of the people's mind. We are reaching 5 lakh people every day. And we are now live on Facebook, YouTube, and many other platforms. So lakhs of people get benefit from this idea. We also have a mediation cell. So anybody who has any dispute related to COVID era, anybody who has any dispute related to COVID era, we have a mediation cell. They can contact mediation cell and the email will be given on the chat. You can note down the email with that. So we are also handling mediation of various COVID related disputes. The disputes can be patient to doctor, patient to hospital, patient to pharmacist, patients to treatment. So we are not resolving conflicts. We only mediate between the 2 parties and try to help them in understanding the subject and heal everything. It is HCFI mediation cell at gmail.com. HCFI is Heartcare Foundation of India, mediation cell at gmail.com. We are meeting every day from 8 to 9 a.m. in the morning where we answer your queries. We also meet 2:30 to 3:30 live on Facebook and YouTube, and we connect to the public and answer their queries. Apart from that, 3 or 4 times in a week, we have special meetings. Today is a special meeting for diabetics. The answer for this diabetics is we have 137 people already here, minus 13, 141. So large number of people are here, which indicates लोगों को डर लग रहा है. Now remember, diabetics does not mean death. सब लोगों के डरे हुए लोग हैं कि मेरे पिताजी को डायबिटीज है, अगर कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी का वजन भी कोरोना के वायरस से कम नहीं है, ज्यादा है सबका वजन. अगर कोई ऐसा आदमी हो यहाँ पे जो बोले कि कोरोना का वजन मेरे से ज्यादा है और डर लग रहा है, तब तो मैं समझ पाऊं. या कोई आदमी यहाँ बोले कि कोरोना वायरस का साइज मेरे से ज्यादा है तो मैं डर पाऊं, तो मेरे को डर लगे तो लाजमियत है. एक वायरस जो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, उससे आप लोग डरे हुए हैं और आप लोग पिंजरे में बैठे हुए हैं. पूरी दुनिया को उसने पिंजरे में बिठा दिया है, पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ. सो व्हाट? सो आवर मैसेज फॉर टुडे इज, कैन आई प्रिवेंट कोरोना? इफ यस, व्हाई नॉट? एंड इफ आई डेवलप कोरोना, सो व्हाट? डायबिटिक हूँ तो सो व्हाट? दुनिया डायबिटिक है. आपको मालूम है 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं इंडिया में, 10 लाख लोग हर साल डायबिटिक मरते हैं. तो कोरोना कैसे सीरियस हो गया? नो, कोरोना कैन नॉट बी सीरियस फॉर डायबिटिक्स. यस, इफ यू कंट्रोल योर शुगर, अगर आप अपना ब्लड शुगर को 110 फास्टिंग से कम रख रहे हैं, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए सौरभ, एवरीबॉडी शुड ज्वाइन दैट, डायबिटिक्स करके. Okay. The number is very high, so therefore we are making a WhatsApp group right away. Kindly join that group so that you can contribute amongst each other. So I says diabetes has, so what? What is the fear? What is the fear? जितने लोग बैठे हैं कि रोज मेरे को रात के 12 बजे फोन आएंगे, मेरे पिताजी को डायबिटीज हो गया, टू द एक्सटेंट कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि जो डायबिटिक है उसको आइसोलेट कर रहे हैं कि आप कमरे में बंद रहो, हम बाहर घूमेंगे. व्हाट इज दिस?
जितने लोग हैं ना यंगर पॉपुलेशन को पूछो तो वो क्या कहती है, मेरे पापा मम्मी डायबिटिक है, उनको अंदर कमरे में बंद कर दियो। हमने उनको कमरे में बंद कर दिया, उनसे कोई नहीं मिलेगा, खुद घूम रहे हैं सारी जगह पे। क्या मतलब है? डोंट यू हैव ए फ्रीडम? सो व्हाट डायबिटिक हो तो? सो कंट्रोल डायबिटिक्स have zero risk. Zero risk means same risk as that of mine. Control diabetics. And it's an opportunity for you to control diabetics. Who says diabetics cannot go for walk? Who says diabetics cannot go out? Who says diabetics cannot go to the park and walk? Who says? Absolutely no way. Absolutely no way. If you are a diabetic, my question is, so what? क्या डायबिटिक्स इंसान नहीं होते? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या आप उनको बंद करके रखोगे 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए? और अगर हाँ तो कब तक? ये तो 4 साल तक नहीं जाने वाला है कोरोना। वैक्सीन नहीं आने वाला अभी 6 महीने 8 महीने तक, तो 6 महीने बंद रहोगे क्या अपने आप को? एब्सोल्युटली नो। आई एम वरीड। 185, आई थॉट 30-40 लोग आएंगे। इट इज क्रॉसिंग एवरी सेकेंड। 185 पीपल आर हेयर। इट मीन्स हर आदमी के मन में डर लगा हुआ है। एवरीबडी इज अफ्रेड। ये डर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इतने लोग तो सुबह भी नहीं आते जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सो व्हाट इज द फियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, ये 4 लोगों ने हाथ रेस किया है, फियर किस चीज का है? सौरभ स्टार्ट टेकिंग द चैट के ऊपर में जाइए। हेलो, एक सेकंड, मुझे चैट को राइट साइड में चाहिए मेरे को। ये मैं राइट साइड में चैट कैसे लूं? आप मेरे को करिए जरा, आप मेरे को होस्ट बनाइए। आपको होस्ट या को होस्ट बनाइए मेरे को। ऋतु, मेरे को को होस्ट बनाइए क्योंकि मेरे राइट साइड में चैट आनी सर चाहिए। सर को होस्ट है। तो मेरे को राइट साइड में चैट क्यों नहीं आ रही है? आप पार्टिसिपेंट्स को ऑफ कर दो अपने, तो राइट साइड पे पूरी चैट आ जाएगी बड़ी। नहीं आ रही है, अभी भी पार्टिसिपेंट को भी कर रहा हूँ तो वो बीच में आ रही है। वो अच्छा बीच में आ रही है, एक सेकंड। चैट ये सब ये यस। सो लेट्स से नो, वी विल गो नॉट गो टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अभी हमारा सिर्फ है ये बताइए कि डर लग रहा है कि क्यों लग रहा है? किससे डर लग रहा है जी? आई फर्स्ट वांट टू नो डर क्यों लग रहा है? डर किस चीज का लग रहा है? मर जाएंगे, ये डर लग रहा है क्या? कौन बताइए मुझे, कौन आदमी है जिसको डायबिटीज हुई है, मरा है अभी तक? क्यों डर लग रहा है लोगों को? 204, आई कांट बिलीव इट। 204 people have joined. I agree, diabetics need to be more careful. I agree, diabetics need more observation, but not fear. Not fear of death. No way. Number one, let's talk about diabetes को क्या करना है। Number one, सारे diabetics निमोनिया का वैक्सीन लेंगे। That is compulsory for them. That's mandatory for them. इसको न्यूमोकॉकल निमोनिया बोलते हैं। ये 2 वैक्सीन होते हैं, एक 13 वाला, एक 23 वाला। एक अभी लगेगा तो एक अगले साल लगेगा। जब 2 वैक्सीन लग जाएंगे तो उसके बाद में अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो 60 साल से ज्यादा है तो दोबारा नहीं लगेगा। अदरवाइज 5 साल के बाद में एक इंजेक्शन लगेगा। हर डायबिटिक को साल में फ्लू का वैक्सीन लगना चाहिए। नहीं लगा तो लगवा लो, दैट्स मैंडेटरी। बिकॉज अभी अगर आपको कोविड हो गया, रिकवर होने के बाद में फ्लू फिर हो सकता है। ये कोविड का वायरस जाएगा तो फ्लू फिर आ सकता है। फ्लू इज इक्वली डेंजरस इन डायबिटिक्स में, फ्लू ज्यादा डेंजरस है। कोविड तो निकल जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, अगर आप डायबिटिक्स हैं और अगर आपको कोरोना हो गया तो 60 से 70% चांसेस है कि आपको जो कोरोना होगा वो नॉन पल्मोनरी होगा, नॉन निमोनिया वाला होगा। अगर नॉन निमोनिया वाला अगर आपको कोविड हो रहा है तो बल्ले बल्ले, कुछ नहीं होने वाला। आपकी स्मेल जाएगी, टेस्ट जाएगा, डायरिया होगा, रैश आएगा, कान में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। या गले में दर्द होगा, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को निमोनिया होता है, कुछ लोगों को निमोनिया होता है, और निमोनिया तीसरे चौथे पांचवें दिन होता है। और तीसरे चौथे पांचवें दिन अगर आपका पकड़ में आ गया तो दवाइयां देंगे, आप ठीक हो गए। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, देन व्हाट इज द इश्यू? किस चीज का डर है? डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वॉकिंग आप छोड़ ही नहीं सकते। सब लोग जो हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वॉक कर ही नहीं रहे, घर में बंद हैं। अगर वॉक नहीं करोगे तो डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगी? अगर आप वॉक नहीं करोगे, किसने बोला है कि वॉक नहीं कर सकते? बिल्कुल वॉक कर सकते हो। आप अपना मास्क पहन के जाओ और गार्डन में जाओ, और गार्डन के अंदर में अगर आपने मास्क भी उतारना है तो दूसरे से 6 फुट दूर रहो। वेयर इज द इशू? लेट्स टेक फ्यू पीपल। लेट मी फर्स्ट आस्क मनोज सिंह जी। सौरभ जी, मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी, बताइए किस चीज का डर है? आप पुणे से हैं, क्या डर है आपको? बताइए आप अनलॉक कर लीजिए अपने को। क्या डर है आपको, बताइए। नहीं, अनम्यूट करके बोलिए। यस, नहीं, मैंने अनम्यूट किया है, मुझे कोई डर नहीं है। आपको कोई डर नहीं है। वेरी गुड। इधर से आइए आप। ये रीता प्रकाश जी के यहाँ से कौन है, बताइए। सुनील सन्याल, वीरेंद्र मेहता, निदेश मलिक। ये एक एक करके अनम्यूट करिए और बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। बोलिए निदेश मलिक जी। सर मैं तो अभी वैसे ही देख रहा हूँ, आई एम नॉट डायबिटिक, तो कोई डर नहीं है, आई एम जस्ट वेरी गुड। वीरेंद्र मेहता जी। सर मैं डायबिटीज हूँ, अगर ये निमोनिया वाला कोविड हो गया तो उससे पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? नहीं तो क्या हो गया, बताइए। अगर मान लीजिए निमोनिया है, कैसे पकड़ोगे? पहले ये बताओ। पहले ये बताओ कि आपको अगर निमोनिया हो गया तो कैसे पता लगेगा? अगर देखिए, डायबिटिक के लोगों को क्या देखना है, आपने देखना है कि पहले दिन मेरा सिम्टम कौन सा है। अगर आपको बुखार है, अगर आपको डायरिया हुआ है, अगर गले में खराश है, अगर लेफ्ट आई में आपको कोई तकलीफ हुई है, या कान में तकलीफ हुई है, या लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, या सांस फूल रहा है, वो पहला दिन हो गया। उसके बाद में तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आपने सिर्फ रोज 6 मिनट चलना है और अपनी ऑक्सीजन देखनी है कम तो नहीं हो रही। अगर तीसरे, चौथे, 5 दिन में चले और ऑक्सीजन कम नहीं हुई, खत्म हो गया, कोरोना आया चला गया, क्या चिंता हो रही है? डायबिटिक पेशेंट को तो वैसे ही रोज चेक कर लेना चाहिए। रोज सवेरे वॉक पे जाओ, चाहे कोरोना है या नहीं है, सवेरे वॉक पे जाओ, 6 मिनट वॉक करो और देख लो मेरी ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रही। सर एक बात, ऑक्सीमीटर कौन सी कंपनी का अच्छा होता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? आपने कोई शेयर लेने हैं किसी कंपनी के? नहीं वो भाई, या तो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदने हो तब तो मैं बताऊं, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी कंपनी का हो, ऑनलाइन क्या फर्क पड़ता है? जो आपको मिल रहा है वो मंगा लो। रिलायबल नहीं होगा, ऑनलाइन वापस हो जाएगा। भाई इसको कोई मतलब थोड़ी है ना। आप इसी को सोचने में कि कौन सी कंपनी का होगा 10 दिन लगा दोगे। जाओ वहां पे जाके जो आपको लिख रहा है उसको ऑर्डर प्लेस करो। तो मेरे कहने का मतलब है, डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ एक काम करना है, रोजाना सवेरे वॉक के टाइम पे इसको लेके चलना है। पहले चेक कर लेना है और वॉक के बाद चेक कर लेना है। अगर ये गिर रहा है तो बात कर लेनी है। ये तो रूटीन, इसको तो कोरोना से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हार्ट अटैक भी बताएगा, निमोनिया भी बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा, और करना ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू। आपने ये चेक करना है कितना है, 6 मिनट के। आप सवेरे वॉक पे निकल गए, 6 मिनट के बाद में देख लिया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलते चले गए, नोट कर लिया। ये एक रूटीन चीज आप क्यों नहीं कर सकते? सभी डायबिटिक कर सकते हैं। हेलो, ये सारा ओरल जी में आ रहा हूँ, और इसके अलावा कोई है ही नहीं डायबिटिक्स के लिए। जिंदगी भर तक इसको करते जाओ, और जब ऊपर जाएंगे इसको चलते हुए जाएंगे हम, उसके साथ को साथ ही लेके। जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे पैदल चलते हुए युधिष्ठिर की तरह, इसको साथ लेके जाएंगे। हेलो, परेशानी किस बात की है? यस उर्मिला जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं तो ज्यादा बात करने ही नहीं आया, मैं तो सिर्फ देखने आया था कितने लोग डरे हुए हैं। 20 साल डॉक्टर साहब, 20 साल हो गए मुझे शुगर हुए हुए, और आपने जो वैक्सीन बताई है, मैं 67 ईयर की हूँ। ज्यादा है कि 67? अमिताभ बच्चन आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे बड़े हैं, सॉरी। वो तो डर नहीं रहे, आप क्यों डर रही हो? नहीं, डर नहीं रही डॉक्टर साहब। आपने जो वैक्सीन बताई है तो मुझे अपने, जिससे मैं शुगर का इलाज करा रही हूँ, वही डॉक्टर लगाएंगे? ये स्टैंडर्ड वैक्सीन है फ्लू का और निमोनिया का। आप चेक कर लीजिएगा, अपने डॉक्टर से बात करिए, वो लगवा देगा। ठीक है। ये वैक्सीन हर डायबिटिक को, ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ये वैक्सीन सबको लगने चाहिए थे, लगने चाहिए हैं, और लगने चाहिए होंगे आगे। और बोलिए।
सर ये जो आपने मेडिसिन बताई है आइवरमेक्टिन और मैंने कहाँ बताई अभी? मैंने अभी कहाँ बोला है आइवरमेक्टिन? नहीं, आपने पहले बताई थी ना कि घर अभी में अभी सबको आज खिला की दो। बात करो, आज की बात करो। मैंने अभी तो नहीं मतलब वो बताई आइवरमेक्टिन। डायबिटिक लोगों को खिला सकते हैं वो? अभी मैं आऊंगा दवाइयों के बारे में, आगे आऊंगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ उतना सवाल पूछो, डर किस बात का है? डर इसका है सर कि मेरी मम्मा का फीवर जो है जब वो बहुत वीक हेलो। फील कर रही है। डायबिटिक है। हेलो मैं सर डीके डायबिटिक मिश्रा पिछले फ्रॉम 10 पुणे। साल से है और अभी फादर का भी डायबिटीज निकली है उनको उनको और उनका फोन करो, सीआरपी बोलिए। 9 है। सीआरपी उनका 9 है सर। अभी मैं आ रहा हूँ। अभी हम आ रहे हैं एक एक करके। तो नंबर लोग सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप सुनिए, अभी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, नंबर 1 डरने की बात नहीं है। नंबर 2 अपना ब्लड शुगर 110 फास्टिंग से कम रखिए। नंबर 3 आपका HbA1c 7 से कम रखिए। नंबर 4 आपको स्टैटिन की दवाई जरूर लेनी है। अपने डॉक्टर से बात करके चेक करिए स्टैटिन की दवाई चल रही है कि नहीं चल रही। आपको एस्पिरिन 150 मिलीग्राम की दवाई चलनी बहुत जरूरी है इस टाइम के अंदर में। जैसे कि जूही ने बोला, एक दवाई आती है आइवरमेक्टिन, IVERMECTIN। ये पेट में कीड़े मारने की दवाई है। 12 मिलीग्राम की दवाई सब लोग खा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। ये कीड़े मारने की दवाई है, ये एंटीवायरल भी है। ये वायरस को भी खत्म करती है अगर हमारे शरीर में है। अगर किसी को कोविड होगा तो हम आइवरमेक्टिन ही देंगे उसके साथ में। अगर आपको कोविड हो गया तो सिर्फ तीसरा, चौथा, 5वां दिन आपने ध्यान से रखना है कि निमोनिया को जल्दी पकड़ना है। अगर निमोनिया टाइम पे पकड़ में आ गया तो आपको कोई चिंता नहीं है। 9 दिन के बाद में कोविड जी हमारे शरीर से निकल गया। 9 दिन के बाद में आप लोगों से मिल सकते हो। हालांकि गाइडलाइंस कहती है 14 दिन, तो 9 दिन के बाद में आइसोलेशन खत्म। अपने घर में 5 दिन आप बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ में मास्क पहन के रह सकते हैं। डायबिटिक सारे मास्क पहन के रहेंगे नेक्स्ट 3-4 साल तक, ताकि कोई दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। आप लोगों को मास्क पहन के कहीं भी जाना है, मास्क पहन के जाना है। अगर कोई आपकी लक्ष्मण रेखा 10 बाय 10 फीट में आ रहा है तो वो मास्क पहनेगा। अगर आपको कोरोना हो गया तो हो सकता है आपको बुखार 40 दिन तक रहे। ये सबको रह रहा है, आप स्पेशल नहीं हो। जिनको कोरोना हो जाता है उनको लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट 3 महीने तक आ सकती है, जा सकती है। 40 दिन तक लो ग्रेड फीवर हो सकता है जो एक्सर्शनल है, 4-5 घंटे के लिए आता है, शाम को आता है फिर चला जाता है। उसके अलावा उनके पैर में उनको एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वीकनेस हो सकती है, तो इसलिए खूब सारा प्रोटीन खाइए। उनके पैर में घुटनों के नीचे दर्द हो सकता है तो खूब सारा प्रोटीन खाइए। उनकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आएगी तो वो माइनर कोरोना है। उनके कान में दर्द हो सकता है तो माइनर कोरोना है। लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है तो माइनर कोरोना है। अगर उनको डायरिया हो रहा है तो माइनर कोरोना है। जिन लोगों के 9 दिन गुजर गए उसके बाद में महीना 2 महीने तक उनको हल्के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है। पैनिक होने 9 दिन के बाद में पैनिक होने की जरूरत नहीं है अगर निमोनिया नहीं हुआ तो। अगर 9 दिन आपके निकल गए हैं और किसी को निमोनिया नहीं हुआ, उसके बाद में सिम्टम्स अगर रहते भी हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स खत्म होने में टाइम लगेगा। सो मेरा, क्योंकि आज इतने सारे लोग हैं, आई कांट डू द टोटल स्टैटिस्टिक्स। अर्चना जी आप यहाँ पर हैं क्या? आई थिंक वो है शायद। अर्चना जी आप फ्रंट पेज पे आ जाइए। अर्चना जी हाँ सर मैं हूँ, बट मुझे फ्रंट पेज में आना नहीं आता है। आगे आप जैसे बोलोगे फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। ओके जो बोलेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रंट पेज पे आ जाता है। तो अर्चना जी आपने देखा 269 पीपल, कितने लोग डरे हुए हैं? 269 फैमिलीज का मतलब है कम से कम 2000-3000 लोग यहाँ बढ़े हैं, सब लोग डरे हुए हैं। सर ये नंबर देख के मैं खुद इतनी डरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मेरे फादर इन लॉ भी सुन रहे हैं आपको सर, उनको तो आज कितने सालों से है, आई डोंट वांट टू से, वो भी सुन रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट डायबिटिक है तो सो व्हाट, ब्लड प्रेशर है तो सो व्हाट, हार्ट अटैक हुआ है तो सो व्हाट, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। नहीं बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, एब्सोल्युटली नो डर।
डायबिटिक इतने सारे आदमी, लोग। ऑन द कॉन्ट्रारी, डायबिटिक आदमी को तो कोरोना हल्का होना चाहिए, बिकॉज ही इज मोर केयरफुल। डायबिटिक आदमी तो ज्यादा केयरफुल है। अगर कोई आदमी मेरे को बोलता है, कोई आदमी माइनर हार्ट अटैक जिसको हुआ हो वर्सेस नो हार्ट अटैक, जो माइनर हार्ट अटैक वाला है, ही लिव्स ए बेटर लाइफ बिकॉज ही इज टेकिंग प्रिकॉशंस। सो नो फियर एट ऑल, नो फियर एट ऑल। अर्चना जी, अब आप लीड करिए, लोगों से सवाल पूछिए, जो आपको नहीं आएगा जवाब उसका मैं दूंगा। पूछिए लोगों से, डर निकालिए आप। अर्चना जी सिंगापुर से हाँ, हैं, और सर। हमारे सिंगापुर के डिपार्टमेंट को ये संभाल रही हैं। बोलिए। सर, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे ये इतना अच्छा काम सौंपा है। जैसे अपने बोलते हैं नोबल कोरोना वायरस, ये नोबल काम आपने मुझे दिया है कि मैं ये यहाँ के पूछिए, लोगों लोगों के सवाल लीजिए और जवाब दीजिए। जो बच जाएगा मैं, मतलब जो छोटे मोटे सवाल है वो अपने जूनियर को दे देना, मैं दे दूंगा जवाब उसके। को बताइए कौन पूछना चाहते हैं। सर, मैं चैट से पूछूं क्या सर? जैसे मर्जी करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। चैट कहाँ है? मैं चैट से पूछूं क्या सर? जैसे मर्जी करो, आपकी चॉइस है। अच्छा, ठीक है। मैं खोज रही हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल माय फादर इन लॉ मिस्टर महेंद्र कुमार जैन। टिल द टाइम मैं खोज रही हूँ किसी के क्वेश्चंस। बोलिए। महेंद्र कुमार जैन जी, महेंद्र बोलिए। कुमार जैन, माय फादर। I want to ask. पापा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। बोलिए। सबसे पहले ये बताइए, ये जो दाढ़ी है, ये कोविड दाढ़ी है कि नॉन कोविड दाढ़ी है? नहीं, नॉन कोविड है। मतलब हमेशा से ऐसी रहती है? हाँ, ये ऐसे ही रहती है सर। मतलब कोविड के पहले भी ऐसी ही थी? हाँ, ऐसे ही थी। ठीक है, चलो। मैं डरता नहीं हूँ सर। कोविड दाढ़ी है वो कट जानी चाहिए पहले। हाँ हाँ। कोविड दाढ़ी का मतलब है कोविड के डर से दाढ़ी नहीं बना रहे। ना ना, वैसे कोई बात नहीं है मेरे साथ में। बोलो। हाँ, क्योंकि हाँ, बोलो। तो आप बताओ, डर किस चीज का है? मुझको डर किसी बात का नहीं है सर। घर से बाहर कब निकले थे? घर के बाहर, ये एक तो चीज है कि घर के बाहर मैं नहीं निकला था, ये बात सही है। सुबह वॉक करने पे जाइए कल सवेरे। अच्छा सर। मास्क पहनिए, सुबह वॉक पे जाइए। सर, अभी तो घर में सबको है ना, हम लोग को अलाउड नहीं है ना निकलना। हमारी बिल्डिंग से भी अलाउड नहीं है ना निकलना। तो छत पे जाके करें। हाँ, 2 तला चढ़ना, 3 तला चढ़ना पड़ेगा ना सर। पापा ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। किसने मना किया कि नहीं चल सकते? सर, पापा को वो पैल्पिटेशन की भी एक प्रॉब्लम रहती है, तो बट वो उसकी जांच कराओ, उसके पता लगाएं क्या चीज है। ऐसा थोड़ी है घर के अंदर में सब लोग जेल में बैठे हुए हैं। और बोलिए, कौन है बताइए। सर, ये बड़ा हिंदी में काफी लंबा सा आया है। अतुल केसरवानी। अतुल जी पूछिए। ये गोरखपुर से हैं सर। सबसे पहले जो लोग इंडिया से बाहर हैं वो पूछिए। जो इंडिया से बाहर से हैं कोई, वो पूछिए। कोई नहीं है। कोई नॉर्थ ईस्ट से है तो वो पूछिए। उपमा कोठारी। गोरखपुर से अतुल केसरवानी बोल रहा हूँ। अतुल केसरवानी, कहाँ से हैं आप? सर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बोलिए, उत्तर प्रदेश से हैं। कैसे हैं हमारे कैसे हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं? सर, बढ़िया है। बढ़िया है। तो मैं तो चर्चे में ही है सर, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया चर्चा में है। तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हो क्या आपके? नहीं, वो तो देश बनाएगा सर। हमने तो सीएम बना दिया उनको। चलो, वेरी गुड। बताइए अतुल जी। सर, 1 तारीख को मेरे चाचा जी को जो है माइल्ड फीवर हो रहा था, 99 हो रहा था। तो वो कैल्पोल, ये पैरासीटामोल लेके उसको कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद डायबिटीज और क्या नाम है, 5 दिन बाद उनको हल्की खांसियां स्टार्ट हुई। तो घर पे ऑक्सीमीटर भी रखे थे, चेक करते रहते थे। तो ऑक्सीमीटर उनका मतलब कि SpO2 लेवल। सवाल क्या है? सवाल पूछिए। सर, ये है कि अभी कल परसों उनको जो है खांसी के लिए उन्होंने अपने फिजिशियन को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा पहले अभी आएगा ना जब। एक सेकंड अतुल जी, पहले सबसे पहले उनकी उम्र कितनी है? सर, उनकी एज है 55। पहला सिम्टम कितने दिन पहले आया था? सर, 1 तारीख को। आज कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए। हाँ सर, हो गए। ठीक है जी। नॉन सीरियस हो गए जी। 9 दिन निकल गए तो सीरियसनेस खत्म हो गई। राइट सर।
कोरोना टेस्ट कराया कि नहीं कराया? कराया सर, उनके फिजिशियन ने, हमने कहा कि एक उनको सेकंड, खांसी आ एक रही सेकंड, है, हाँ या ब्रोंकाइटिस ना? हो सकता है। हाँ या ना? कराया कि नहीं कराया कराया? सर, कराया पॉजिटिव है सर, कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। बात खत्म हो गई। तो ना पॉजिटिव है, 13 दिन हो गए, 9 दिन निकल गए, नहीं अब वो कोविड खत्म हो गया, बाकी जो चीज बची है उसका इलाज कराते जाओ। अब डर किस बात का है? सर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में आज उनको एडमिट कराया है, मतलब वो काय को मेडिकल एडमिट कराया है? कॉलेज, वो तो मैं पूछ रहा हूँ, 9 दिन के बाद में एडमिशन का मतलब ही कोई नहीं है। सर वो मेडिकल कॉलेज के जो उनके फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि आप कोविड टेस्ट कराइए, आप कोविड पॉजिटिव है, आप आके एडमिट होइए, तभी नहीं, वही तो मैं बताने की ट्रीटमेंट दे कोशिश कर पाएंगे। रहा हूँ, वही तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डर निकालो। सर मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन एक मैं सेकंड, यहाँ पे अगर कोई आपके 9 हैंडल दिन करने पूरे हो वाला गए, नहीं है। जब आपके 9 दिन पूरे हो गए तो सर टेस्ट यूपी में नहीं मान रहे हैं, मेरी मदर इन लोग को भी उठाकर ले हेलो। गए हैं जबरदस्ती। देखो वो देखो एसिम्प्टोमेटिक देखो, थी और उन्हें नहीं, वो आइसोलेट कर दिया है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, तो लड़ाई लड़ो ना। अगर सरकार की पॉलिसी गलत है तो आपके राइट्स है ना, तो लड़ो उसके लिए। उसके लिए मैंने करो, एक सेकंड, उसके लिए हमारे मीडिएशन सेल को कांटेक्ट करो, मीडिएशन सेल लड़ेगी आपके लिए। वही तो मैंने शुरू में बोला है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो मीडिएशन सेल को कांटेक्ट करो। वो लोग यूपी सरकार को बुलाएंगे, पूछेंगे पॉलिसी क्यों है। सर मैंने बोला था एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए, तो उनके फिजिशियन ने बोला एक कि यूपी में मिनट, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आज हम लोग 272 लोग हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें, और फिर एक जन, जब कोई भी एक जन बोले तो सब कोई अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले, नहीं तो फिर हम लोग ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। जो पर्पस है, डॉक्टर साहब आए हैं, वो हम लोग सुन नहीं अनिल पाएंगे। सैनी कुछ बोलूंगा मैं भी। अनिल सैनी, हेलो हेलो। So let me give एक second. Let me give few general statements. जितने यहाँ पे सबको म्यूट कर दो, सबका म्यूट कर। मेरे को म्यूट की पावर्स क्यों नहीं है? आप कैसे होंगी? मैंने म्यूट कर लिया। डॉक्टर साहब मैं भी बताऊंगा, मैं भी डायबिटिक था, मैं भी ठीक हो गया हूँ। अभी नहीं बोलेंगे। हाँ, आप बता दीजिएगा। अनिल सैनी। एक सेकंड, सबसे पहले सुन लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे डायबिटिक्स हैं, नंबर 1 वो सब ठीक होएंगे। नंबर 2, अगर आपके 9 दिन निकल गए पहली तकलीफ से और आपको निमोनिया नहीं हुआ तो आप ठीक 100% होने वाले हैं। 9 दिन के बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते अगर आपको निमोनिया नहीं हुआ हो तो। जिन लोगों को डायबिटिक है और निमोनिया हुआ होगा वो इस मीटिंग में नहीं आते, वो हॉस्पिटल में होते। जिनको तीसरे दिन निमोनिया हो गया होता डायबिटिक वाले, वो आज की डेट में इस मीटिंग में नहीं आए। इसलिए इस मीटिंग में कोई सीरियस नहीं है। अगर आपको बुखार चल रहा है तो वो 3 महीने तक चल सकता है, हल्का सा बुखार। कोविड रिकवर होने के बाद में 3 महीने तक हल्का बुखार चल सकता है। ये बुखार 100 से कम होगा, शाम को आएगा, 4 से 6 घंटे रहेगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। कई बार आपको पेशाब में जलन होगी, यूरिन के अंदर पस सेल्स आएंगे, यूरिन में बैक्टीरिया नहीं होगा, कल्चर आपका नेगेटिव होगा, ये भी हो सकता है आपको। इसके अलावा आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। सिर्फ वो लोग, कई बार बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गले में ऐसे लगेगा कि कुछ अटका हुआ है गले के अंदर में, ये भी होगा। ये महीने 2 महीने रह सकता है, इसके बाद में ठीक हो जाएगा। जितने डायबिटिक के लोग हैं उनको हमने ठीक होने के 40 दिन के अंदर हार्ट अटैक होने से बचाना है। इसलिए उनको एस्पिरिन, एटोरवास्टैटिन एंड इफ रिक्वायर्ड ए ब्लड थिनर अपने डॉक्टर से बात करके लेनी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हार्ट अटैक को बचाना है बिटवीन 14 डेज एंड 40 डेज। उसके लिए 3 दवाइयाँ में से 2 दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो इसलिए आपने पूछना है अपने डॉक्टर से, भाई बताओ मेरे को नेक्स्ट 40 दिन में हार्ट अटैक से बचाने के लिए क्या दवाई दे रहे हो। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट वीक में, आज ही के दिन में फिर बैठेंगे हम लोग, क्योंकि ये डायबिटिक के 280 लोग हैं, तो एक मीटिंग में आपका डर नहीं जाएगा। मैं 3 कंसेक्यूटिव मंडेज को आपकी मीटिंग करूंगा,
तब जाके आपका डर निकलेगा उसके साथ में। अगर डायबिटिक के आदमी को ऑलरेडी निमोनिया है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, दैट्स ऑल। अगर आपको निमोनिया है तो आपको हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट होना है डायबिटीज के लिए। अगर अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है तो भी घर में बैठ सकते हो। इसके अलावा किसी डायबिटिक को अस्पताल में भर्ती होने का इंडिकेशन नहीं है अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो फिर तो सबको एडमिट कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप अपना टेक केयर कर सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू। अगर आपके घर में आप पॉजिटिव हो, घर में 2 लोग पॉजिटिव हैं, दोनों एक कमरे में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके बच्चे लोग आपको एक ही कमरे में, अगर आपके बच्चे लोग आपको एक ही कमरे में रख के बंद करके बाहर घूमने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी उनके नाम से हटा दो। अगर आपके बच्चे आपको कमरे में ताला बंद करके चले जा रहे हैं, खुद मौज उड़ा रहे हैं कि आप एक कमरे में बंद रहो, सुबह शाम हम आपको देखेंगे, तो बोलो बेटे ये पूरा फ्लोर मेरा है, तू जा यहाँ से, तो कहीं और जाके रहे, हम पूरे फ्लोर में रहेंगे। फ्रीडम चाहिए हमारे लोगों को जो डायबिटिक हैं, ठीक है। इससे आपके 90% सवालों के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तो अर्चना जी को एड्रेस करिए, वो मेरे से पूछेंगी। हेलो हाँ कोई सर, आइवरमेक्टिन कितना mg लेना है सर? हेलो 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग हेलो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, वी विल आस्क क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग सब म्यूट होके सिर्फ एक दो करके करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डॉक्टर साहब जल्दी जवाब दे पाएंगे, नहीं तो हमारा समय निकल जाएगा और हम लोग सबके क्वेरीज नहीं सॉल्व होंगे। हेलो अर्चना जी। मैं आपका पिक्चर देखना चाहती हूँ। हाँ अनिल जी बोलिए। हेलो मैडम। हाँ जी अर्चना जी गुड इवनिंग। डॉक्टर गुड इवनिंग। अर्चना जी गुड इवनिंग। अनिल जी बोलेंगे, उसके बाद कविता जी बोलेंगी। मैडम मेरी एज 66 साल है। गुड इवनिंग मैडम। अर्चना जी अनिल जी आप बोलिए और रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं भी डायबिटिक हूँ, मैं भी सस्पेक्टेड था कोरोना का। मैंने आईजीजी टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, इट मींस मुझे भी कोरोना था, और मेरे को कहीं से भी ये नहीं लगा कि मैं कहीं सीरियस हो जाऊंगा। तो इसलिए पहला डर तो ये निकालो कि डायबिटिक सीरियस होता है। मैं बीपी की मेडिसिन भी लेता हूँ तो भी मेरे को कोई हेडेक नहीं, को कुछ नहीं हुआ कि मैं हो जाऊंगा, कोई मुझे टेंशन हो मैं सीरियस हो जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज होऊंगा। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा 11 तारीख से 10 तारीख को मेरी तबीयत खराब हुई थी, 11 को मैंने डॉक्टर को दिखाया, 12 तारीख से मैं डॉक्टर के अग्रवाल से जुड़ा हूँ। रोज सुबह जूम पे जुड़ता हूँ, दोपहर में भी जुड़ता हूँ, फेसबुक पे भी। बिल्कुल डर निकल गया मेरा, और बल्कि मैं कम से कम 50 आदमियों का बिल्कुल माइंड वॉश करता हूँ रोज सारा दिन। मैं अभी अपने काम पे भी नहीं जा रहा, इसीलिए जो मेरी रिश्तेदारी में मुझे कोई यारी दोस्ती में कोई ऐसा नजर आता है, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का कहता हूँ सुबह जूम पे जुड़ो, जिसको नहीं समझना उसको मेरे से समझ लो। तो मैं काउंसलिंग भी करने लग गया हूँ, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल जी। गौरव जी एक चांस दीजिए। गौरव जी कोई है? कविता जी आप बोलिए। हेलो कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो गुड इवनिंग डॉक्टर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। I request everybody to please put your questions on the chat. I am just reading the chat and I request Kavita ji to unmute herself and please ask your question. Thank you. Hello. Can you hear me? Hello Archana ji, can you hear me? Yes. Okay. डॉक्टर साहब ने जो बताया है मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है और रिक्वेस्ट है, जब तक हम लोग शांति नहीं मनाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे,
इतनी सारी क्वेश्चंस अगर सब तरफ से आएगा, आप खुद सोच के देखिए तो रचना कैसे हो जी, जाएगा। अब रुकिए। रचना जी, मैं क्या करता हूँ, सबको मैं अपने आप से अनम्यूट करूंगा जिसको पूछना है। कविता जी, हाँ जी अनम्यूट करिए। Hello. Good evening, Dr. Saab, and good evening, everyone. Dr. Saab, can you hear me? ये जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड पिछले 25-30 साल से डायबिटिक हैं और उनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, और अभी नवंबर 30 को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो उनकी एक राइट साइड की कैरोटिड आर्टरी पूरी तरह से 100% ब्लॉक्ड है, और वो डिप्लेट A150 डॉक्टर दे रहे हैं उनको। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर, डॉक्टर साहब, ये 22 जून को उनको लूज मोशन हुए थे रात में, और फिर मॉर्निंग में मतलब मिडनाइट में भी हुए थे, फिर मॉर्निंग में मेरे को भी हो गए लूज मोशंस। लेकिन उनको इसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं आया, बट मेरे को चौथे 5वें दिन काफी फटीग और बहुत ज्यादा। कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव? सर डॉक्टर साहब टेस्ट नहीं कराया। तो इन लोगों को दोनों को कोरोना हुआ, टेस्ट करा लें। अगर इनके 28-22 दिन पूरे हो गए तो एंटीबॉडी टेस्ट करा लें, और अगर 14 दिन पूरे नहीं हुए तो एंटीजन टेस्ट करा लें उसके साथ में। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरे हस्बैंड को आज 11वां दिन है, 11th डे है। तो स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन अब क्या है, सुबह भी 100 से ऊपर 101, आज सुबह 100। तो जैसे मैंने कहा है कि जिन लोगों के 9 दिन निकल गए, सीरियस नहीं है, बुखार 2-3 महीने रह सकता है, लो ग्रेड होगा, अपना उसका इलाज कराइए, वो रह सकता है। SC रैना जी, अनम्यूट करिए। सर मेरे को ये डॉक्टर साहब उतारने के लिए दोबारा नहीं पूछेंगे। रैना जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मिसेस रैना बोल रही हूँ। बोलिए। मैंने दिल्ली में भी आपसे बात की थी। मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ट्रांसप्लांट पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट सिंस 20 इयर्स। तो उनको डायबिटीज भी है, बट इट इज अंडर कंट्रोल। देखिए, एक सेकंड, सब लोग ध्यान से रखिए। आज सारे डायबिटिक हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है। आज दूसरे लोग तो यहाँ पर आए नहीं है, सो उतना टाइम, सीधे आइए, सवाल क्या है? हाँ, तो उनको ट्रांसप्लांट 20 इयर्स से, अगर इन दैट केस कि उनको कभी भगवान ना करे कोविड हो जाए तो उस समय क्या किया? कोई चिंता नहीं है, कोविड होएगा। अगर होएगा तो मैंने सबको क्या समझाया है कि अगर किसी को भी, चाहे वो ट्रांसप्लांट का है, चाहे हाई रिस्क है, चाहे लो रिस्क है, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, पहले दिन आइडेंटिफाई करना है, पहले दिन टेस्ट करना है, डे 3, डे 4, डे 5 पे इसका टेस्ट करना है। अगर डे 5 निकल गया तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। हेलो सर। सबका आंसर सेम है मेरे यहाँ पे। उर्मिल शाहू। गुड इवनिंग। उर्मिल शाहू, देन गणेश, देन उषा माथुर। सर मुझे भी बोल लीजिए। नहीं, अभी नहीं। हेलो। यस, बोलिए, कौन है? सर हेलो, राहुल भाटिया। हेलो, बोलिए राहुल, बोलिए। सर नमस्कार सर, मेरी मदर कोविड पॉजिटिव हुई थी 1 जुलाई को, और सर उनको डायबिटीज, सर 9 दिन हो गए, लेकिन सर उनका ऑक्सीजन रेट ठीक आता है, लेकिन सर हमेशा उनका जो हार्ट रेट आता है वो 90+ रेस्ट पे आता है। कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। अगर निमोनिया नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। हेलो। यस, पियाली बोलो। हेलो सर, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं 33 इयर्स की हूँ। मैं जब आई थी, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, इफ पॉजिटिव। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। अभी आपका जवाब नहीं दे सकते। अभी सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव है, और डे उनका अपना बताए कि मेरा डे इतना है, कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोरोना नेगेटिव हूँ, सिर्फ वो लोग सवाल करें। हेलो सर। यस, बोलिए। दिलीप कुमार मिश्रा। यस सर, एक्चुअली आई एम एक्स कैंसर पेशेंट, आई डोंट हैव थायराइड। मुझे दोनों थायराइड मेरे निकल गए हैं 2007 में। मेरा डायबिटीज में हूँ और बीपी भी है सर। और आपको कोरोना है कि नहीं है? नहीं सर, मैं पीठ में दर्द हो रहा है सर। नहीं, ये कोरोना नहीं है। नेक्स्ट। हेलो। यस। हाँ जी सर। सर आज मैं शुगर पापा का कराया, डायबिटीज 251 आया है, उनका बहुत अपॉइंटमेंट ज्यादा है। 110 फास्टिंग आना चाहिए। डायबिटीज 110 फास्टिंग होना चाहिए। जिन लोगों का, एक सेकंड, जिन लोगों का फास्टिंग शुगर 110 से ज्यादा है, अपने डॉक्टर से बात करें, शुगर को कंट्रोल करें। नेक्स्ट। यस, अनिल मल्होत्रा। हेलो। हेलो। हेलो सर। मल्होत्रा। हाँ सर, मेरा शुगर ज्यादा चल रही है और 2-3 महीने से टांगे और हाथ पतले होते जा रहे हैं।
सबसे पहले मैं सबको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने शुगर को कंट्रोल करवाइए। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास में। टॉक टू योर डॉक्टर, गेट योर शुगर कंट्रोल्ड। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम देन टॉक टू अस नेक्स्ट वीक। अपनी शुगर कंट्रोल कराइए। अपना शुगर 110 पे लाना है, चाहे इंसुलिन से लाएं चाहे जैसे मर्जी लाएं, आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और कोरोना हुआ तभी सीरियस होगा, अदरवाइज नहीं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए हाई शुगर एंड देन से कोरोना से कुछ नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीक में जब हम नेक्स्ट मंडे को बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट, उर्मिला साहू, उषा माथुर, विपिन खारी। हेलो। यस, उषा माथुर बोलिए। हेलो सर, मेरे को रात को सोती हूँ तो मेरे को एकदम सूखी खांसी उठती है और वैसे दिन भर कुछ नहीं होता है, लेकिन रात को जिन लोगों को सबसे पहले डायबिटिक में अगर आपको खर्राटे आते हैं तो याद रखिए, अगर खर्राटे आते हैं तो अलग से नोटिफाई करिए इस ग्रुप के अंदर में। जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें साइन करिए। 2 बनाने पड़ेंगे आपको ग्रुप। सौरभ 272 क्रॉस कर गए। हाँ, बट अभी किसी ने ज्वाइन करा बहुत। कैन यू प्लीज ज्वाइन द लिंक? हेलो, लिंक दोबारा भेजो सब लोग। इस डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। एक सेकंड, अभी नहीं। सब लोग इस लिंक को ज्वाइन कर लें। जब 256 हो जाएंगे तो वी विल मेक अनदर ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर में रेगुलरली हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे। अगर आप लोगों को खर्राटे आती हैं तो उसका इलाज कराना होगा। सर सूखी खांसी हेलो, डायबिटीज सर्जन जी जरूरी बात पूछना है। हेलो सर, नमस्कार। देखिए, अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं यहाँ से आपको परमानेंटली डिबार कर दूंगा। मेरे पास पावर्स हैं, फिर आप इस जूम के अंदर में दोबारा मेरी किसी मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। उसके साथ में अभी सिर्फ मैंने उषा माथुर जी को बोला हुआ है, मैं उनके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तो जिन लोगों को खर्राटे हैं, जो लोग मोटे हैं, वो सब लोग पेट के बल सोना चालू कर दें। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे पेट के बल सोना चालू कर दें। सर ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी आती, सिर्फ एसी। मैंने अभी उषा जी, अभी मैंने सुन चुका हूँ आपकी बात को। मैं आपकी बात को सुन चुका हूँ। अभी मैंने आपको दोबारा बोलने के लिए नहीं बोला। जितने लोग भी डायबिटिक हैं, अगर उनको खर्राटे आती हैं तो उन्हें इलाज कराना है। जिन्हें सबको पेट के बल सोना है, सबको अपने लंग्स की एक्सरसाइजेस करनी है। और अगर आपको लेटने में खांसी आती है तो इसके 2 कारण होते हैं। या तो आपका पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर आपका हार्ट डायबिटिक का इन्वॉल्व है। सो ऐसी सिचुएशन में जो लोग कहते हैं कि लेटने में खांसी आती है, बैठते हैं खांसी खत्म हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर में आप अपने डॉक्टर से हार्ट चेक करवा लीजिए। हार्ट चेक करवाने का सिंपल फार्मूला है, अगर आप 6 मिनट के अंदर में 500 मीटर चल लेते हो तो आपका हार्ट नॉर्मल है। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर बिना किसी दिक्कत के चल लेते हो तो आपका हार्ट नॉर्मल है। अगर आप 200 मीटर से कम चलते हो तो आपका हार्ट एबनॉर्मल है। और अगर आप 200 से 500 मीटर के बीच में चलते हो तो अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लें। तो कल सवेरे जाइए, चल के देख लीजिए। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर चल लेते हो, आपको कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सोनिया बजाज। हेलो। यस, बोलिए सोनिया जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, बोलिए। एम आई ऑडिबल सर? यस, बोलिए। या सर, माय फादर इज 60 years old। उनका कोविड का 5th डे है एंड ही इज व्हेनेवर ही इज टॉकिंग उनको कफ हो रहा है बहुत। सो सोनिया जी कह रही हैं, हमने क्या कहा था, तीसरा चौथा पांचवा? हमने कहा था तीसरा चौथा पांचवा। बातचीत करने में कफ होने का मतलब है एक्सर्शनल कफ। दैट इज ए साइन ऑफ क्वेरी निमोनिया। गेट हिज CT scan done tomorrow, then talk to me. This is what I am saying. This is the only thing to pick up. तीसरे चौथे पांचवें दिन चलने पे ऑक्सीजन कम हो रही है या सांस फूल रहा है या खांसी हो रही है, उस सिचुएशन के अंदर में आप इमीडिएटली अपना CT स्कैन, कहाँ रहते हैं आप?
रहते हैं, सूरत। हाँ तो सूरत रहते हैं। अपना CT स्कैन कराइए, फिर कल बात करिए। ठीक है डॉक्टर साहब। 5वें दिन में अगर निमोनिया आता है तो इमीडिएटली 3 चीजें देते हैं। वायरस को मारते हैं हम लोग, स्टेरॉइड देते हैं और साथ में हम ब्लड थिनर देते हैं, तो उससे आदमी की जान बच जाती है। Am I clear to everybody? तीसरे, चौथे, 5वें दिन अगर आपको चलने पे ऑक्सीजन कम हो जाती है या सांस फूलता है या खांसी होती है, दैट इज ए साइन ऑफ कि आपको निमोनिया है। या चलने पे आपकी दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ जाती है, कि जरा सा चले और दिल की धड़कन 140 हो गई, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। दीज आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। निशांत कथोरिया, निशांत कथोरिया। सर नमस्कार। बोलिए। सर मेरी वाइफ को कोविड हुआ था 3 मई को, 3 जून को। सवाल क्या है आपका? सर मेरी वाइफ के अभी बलगम बहुत जमी हुई है गले में। तो जिन लोगों का 9 दिन गुजर गए हैं उनको ब्रोंकाइटिस हो सकती है। नाउ शी इज नो मोर ए कोविड पेशेंट, नाउ शी इज ए ब्रोंकाइटिस पेशेंट। उसका इलाज करवाओ। नेक्स्ट कौन है? यस, मोनिया आनंद। मोनिया जी सवाल पूछिए। इसके बाद में ऋतु जैन, ऋतु जैन के बाद में गणेश, गणेश के बाद में गीता अग्रवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। मेरा ना कोविड नेगेटिव आया था विद सिम्टम्स ऑन 25 जून। फिर मैंने, मेरा ये सवाल है, आज मैंने IgG कराया है। आप डायबिटिक हैं? नहीं, आई एम नॉट डायबिटिक। कल सुबह 8 बजे बात करिए, कल सवेरे 8 बजे बात करिए। नेक्स्ट। Ritu Jain, sir. My husband, yes, my husband was having some symptoms for the past 4 days, and today we got him tested. But the results, I'm from Patna, and the results will be available only after 3 days. No, एक second. Okay, only thing I want to know is I am diabetic, sir. What I want to know is. ऋतु जैन जी, उनको 4 दिन से पहले क्या, सबसे पहले क्या सिम्टम आया था? उनको गले में हल्की दर्द था और दोनों कानों के नीचे। आज कौन सा डे है? Today is the 4th day, sir. Loss of smell, loss of taste हुआ? No loss of smell, only low grade fever. कल से सवेरे से 6 मिनट चलाएंगे? Yes, he has done that. He is एक सेकंड, कल परसों तरसों रोज 6 मिनट चलाएंगे। अगर चलने में सांस नहीं फूल रहा, ऑक्सीजन नहीं कम हो रहा, तो कुछ नहीं करना। 7 दिन तक निकल जाएगा, तो 7 दिन के बाद में दोनों मिलके घर में बैठ के बाहर से खाना मिला के खाएंगे। नेक्स्ट चलो। Thank you. No. नेक्स्ट कौन है? गणेश। नाम बोले हैं वो कौन है? गणेश। गणेश। हेलो, नमस्ते सर। यस सर, मैं इंसुलिन पे हूँ, 40 यूनिट्स लेता हूँ, लेकिन मेरा शुगर फिर भी कंट्रोल में नहीं रहता सर, दवाई लेता हूँ तो भी। तो आपको कितना रहता है फास्टिंग शुगर? 150 के आसपास। नहीं, कम करना है आपने। तो देखिए, जो लोग डायबिटिक हैं वो समझ लीजिए, इंसुलिन सेम टाइम पे एवरी डे, अगर आपका टाइम 15 मिनट भी इधर उधर होता है तो फर्क पड़ेगा। और ये अगर सिंगल यूनिट ले रहे हैं, इसका मतलब है लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन ले रहे होंगे। लेंटस ले रहे हैं? कौन से ले रहे हैं? मिक्सटार्ड। नहीं, मिक्सटार्ड का एक ही बार ले रहे हैं? नहीं, 2 बार ले रहा है। एक बार 24 सुबह ले रहा हूँ और 16 रात को ले रहा हूँ। तो 24 into 14 कितना हुआ? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट। मिक्सटार्ड में कितना है आपका कितना मिक्सटार्ड में नीचे सुबह की डोज में कितना मिक्स है? सुबह के डोज 24। बहुत कम डोज ले रहे हैं आप, कल बात करिएगा। आपकी डोज बहुत कम है, नहीं कंट्रोल होगा। आपकी डोज बहुत कम है, यू आर ए वेरी स्मॉल डोज। इतनी डोज में तो आपका ओरल से कंट्रोल हो जाना चाहिए था। अच्छा। या तो आपको किस टाइम पे ले रहे हो डोज? सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग ले लेता हूँ सर, 24 यूनिट। एक सेकंड, सुबह जो 24 यूनिट लेते हो कितने बजे लेते हो? सुबह नाश्ते के पहले, यानी 10 बजे। नहीं, नाश्ते के पहले मुझे नहीं समझता। ओके, सॉरी, 10 बजे। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये समझाओ, नाश्ता कितने बजे लेते हैं और इंसुलिन कितने बजे लेते हैं? 10 बजे इंसुलिन लेता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ। गलत है ये, सारे गलत हैं आपके। जिसने भी आपको सिखाया है, नेक्स्ट वीक में हम डायबिटीज सिखाएंगे आपको सबको। ओके सर। सिखाया है लोगों ने। जो मिक्सटार्ड वाली दवाई होती है वो नाश्ते से आधा घंटे पहले लेनी होती है। ओके। अगर आपको आधा घंटा जो है नाश्ते से पहले, ह्यूमर होता तो नाश्ते के साथ लेते। मिक्सटार्ड हमेशा नाश्ते से आधा घंटा पहले। और रात का डिनर आपका 12 घंटे के बाद। तो आपका जो रात का डिनर, अगर आपने सुबह की दवाई ले ली 10 बजे और रात का नाश्ता कर लिया, डिनर खा लिया 7 बजे, तो गड़बड़ हो गया ना। बराबर है। तो देंगे
तो नाश्ता 8 बजे लेंगे, डिनर 8 बजे करेंगे। अगर रात का डिनर 9 बजे है तो नाश्ता भी 9 बजे होगा। ओके। ये नहीं हो सकता ना कि 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं और रात का डिनर कर लिया 8 बजे। अच्छा, ओके। वो गलत है। तो आपकी जो प्रोसेस है वो गलत है, इसलिए कंट्रोल नहीं आ रहा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे सारा, हम डायबिटीज के लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट Devjani Ray she's from outside. Yes. From where you are, madam? Yes, good evening, sir. Yes, go ahead. Yes, my father is diabetic and he is 60 years. Actually, I am staying outside of country, so I am worried about him that he has to go outside very frequently due to his business. So he, but you know the conditions. That's why you just suggest me. So what? It is India. Actually, I am worried about that. There is no one to help him. Madam Devjani, he is in India. He is not outside India. He will be taken care of. Why are you worrying? No, actually, I am not there. If he is worried, he will come to our group and talk to us. Why are you worried? Let him join this group. Let him join this group, and we will take care of him. You take care of your own country. I will suggest him. I will take. So which country you are? Now I am in Qatar. Qatar. So you look after people, NRIs in Qatar. You look after them. We will look after your dad. No. Yeah. Of course. But which precautions he should take? Can you please suggest me that I will tell him that do something? So let him join the group here. Let him come in the morning hours. In the morning hours, 8 o'clock. Let him join, and then he will join this Monday group in the evening. My name is DRKK Agarwal. That's the ID for the morning group. Let him join. Okay. Thank you so much. Anybody else? We have 10 minutes left. I have Dr. Kalra to speak, and I have me. Hi, doctor. Sir, I namaskar. will now request Dr. Kalra to take over for 10 minutes. Sir, Dr. namaskar. Kalra. I have one question. मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। मैं क्या ज्वाइनिंग कर सकता हूँ हाई कोर्ट में? मुझे भी कोरोना हुआ था सर। ये निशान कथोरिया हैं, ये काफी बार लिख चुके हैं जूम चैट में। कुछ निशान कथोरिया कुछ। हेलो सर। सर मैं निशान कथोरिया बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वर्किंग करता हूँ। मुझे कोरोना हुआ था मई में 30 मई को। क्या अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ हाई कोर्ट को? अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपकी गलती है ना। ये तो आपने अपने घर में बैठ के 2 महीने घर में बैठे हो। क्यों बैठे हो? 9 दिन के बाद ज्वाइन कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर कालरा, can you take over for 10 minutes? Hello. Sir. Yeah, I will try to answer the question. Yeah. Yes, Dr. Kalra is Director Heart Care Foundation of India, and I'll ask him to answer 10 questions quickly. Gita Agarwal. Hello. Good evening. डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर नमस्ते, बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं और उनकी ऐसे शुगर कंट्रोल में है, किंतु ही इज हैविंग स्लीप एपनिया आल्सो और सीपैप मशीन यूज करते हैं। अच्छा। तो उनके लिए और जो उनके लिए इसमें क्या जैसे प्रिकॉशंस और क्या वो हो सकता है स्लीप एपनिया और इसके साथ डायबिटीज के साथ? और उनको स्टेंट भी लगे हुए हैं डायबिटीज। डॉक्टर उनके स्टेंट भी लगे हुए हैं। एज इज 69। हाँ 69 है और डायबिटीज पूरा कंट्रोल है उनका ना। लास्ट HbA1c क्या था? लास्ट डॉक्टर उनकी जो HbA1c थी वो 5.4 थी। अच्छा ठीक है, फिर तो लास्ट कितने महीने पहले का है ये करवाया था अक्टूबर में डॉक्टर। अक्टूबर में? अच्छा, हर ये 3 महीने में आप एक करा लिया करिए इसका। गीता जी आपने कोरोना की वजह से नहीं करवाया डॉक्टर। गीता जी इस एज में 5.4 इज वेरी लो। इतना ज्यादा शुगर कंट्रोल नहीं रखना इतना, क्योंकि अगर कोरोना हो गया और लो शुगर हो गया तो दिक्कत होगी। तो 5.4 इज वेरी टाइट कंट्रोल। इतना कंट्रोल टाइट हम इस उम्र में नहीं रखते। और दूसरा, जो लोग सीपैप पे होते हैं दे आर बेटर, बिकॉज उनको अगर निमोनिया हो भी जाए तो पता नहीं लगेगा। तो अच्छी बात है, सीपैप इज अ गुड थिंग, इट इज अ प्रोटेक्टिव। क्योंकि अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो हम सीपैप ही देते हैं उनको, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपने शुगर बहुत टाइट कर रखा है, इतना टाइट कंट्रोल मत रखिए, इतना मत कंट्रोल करिए अपने पतिदेव को।
डॉक्टर एक चीज, मेरा ब्रदर है, उसके डायबिटीज है। उनको खाने पीने कोई नहीं देती उनको, सारा कुछ खा जाती हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसी चीज नहीं है, वो खुद ही, उनको पैनिक अटैक भी हुआ हुआ, एंजाइटी पेशेंट भी है। वो एंजाइटी नहीं है, पैनिक अटैक नहीं है, वो हाइपोग्लाइसीमिया है। शुगर लो हुआ होगा, इस कारण से आपने उसको पैनिक अटैक बोल दिया। नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं, शुगर तो डॉक्टर साहब डायबिटीज जस्ट 2 ईयर्स से है, पैनिक अटैक उनको 20 साल से है। शुगर बिहेव्स लाइक ए पैनिक रिएक्शन। डोंट नहीं डॉक्टर साहब, डायबिटीज तो भी 2 साल से सिर्फ हुई है, पैनिक अटैक 20 साल से। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 साल से हुई हो? एनीवे आगे चलिए। तो ज्यादा चांसेस है। और नेक्स्ट कौन है? शांति लाल राठौड़, पीयूष पियाली गोयल। हेलो। हाँ सर, मेरे पापा को अभी कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था, बाद में 8 दिन बाद नेगेटिव आया और अभी उनको लंग्स में इन्फेक्शन है और वो ऑक्सीजन चढ़ा रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो आप चलने के बाद में ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर 8वें दिन लंग में निमोनिया था और चलने में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर चलने में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो घर पे आपको 4-5 दिन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। नेक्स्ट J7 Pro। हेलो। गैलेक्सी J7 Pro, बोलिए। हेलो। सो देखो ना, जरा सा मैंने 15 मिनट की एजुकेशन करी, सब शांत हो गए, सबके आंसर्स मिल गए, सब शांत हो गए, सबका डर निकल गया। अर्चना जी का अभी तक नहीं निकला डर। हाँ जी बताइए। नहीं सर मेरा डर नहीं, मैं चाह रही हूँ जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पे कुछ एक लोग बाहर से आए हैं तो मैं उनको चैट में लिख रही हूँ कि वो अगर मुझे अपना नंबर भेज दे तो हम लोग का एक NRI का ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं उनको ऐड कर लूँ ताकि उनको रेगुलर। इस वीक में लेट अस टेक इट ऑन व्हिच डे, मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ NRI वाला। हेलो। आज तारीख क्या है? आज 12 तारीख। 13 तारीख, सॉरी 13 तारीख। सौरभ जी एक चांस दीजिए। सौरभ जी। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए आप। हेलो। हाँ जी। मैं अजमल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार। हम के अग्रवाल साहब को हम 1 मंथ के ऊपर से फॉलो कर रहे हैं। हमारा बहुत बहुत उनके लिए दुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। मेरा एक ही प्रॉब्लम ये है सर। एक सेकंड। थर्सडे को शाम को 7 बजे सौरभ NRI की मीटिंग। ओके। थर्सडे शाम को 7 बजे एग्जैक्टली जिस दिन हमारी मीटिंग है 6:30 की ग्रुप मीटिंग है, उसके बाद में NRI की मीटिंग। परफेक्ट। तो आप इनको सब लोगों को आज ही का लिंक दे दो, आज ही का जो लिंक है सर, जो आज का लिंक था ना उसी में कर देंगे ना अलग से। बट वो सर एक क्वेश्चन है अभी, एक सेकंड। हाँ, जो भी है आप देख लीजिए NRI की मीटिंग मैं बना दूंगा। सर US में तो आप अगर 7 PM पे करोगे तो उनके यहाँ तो सुबह के 3 मतलब इंडिया में, इंडिया का 6:30 बजेगा US का। तो क्या हो गया, 6:30 तो उठेंगे ना लोग। 8 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो हाँ 8 बजे सिंगापुर वगैरह सब रोएंगे, यहाँ पे इधर वाले लोग जहाँ 3 घंटे आगे होते हैं। हेलो। हम लोग जो घर में हमारे अमेरिका से फोन आता है शाम को 7 बजे ही आता है। उठेंगे, जिसको आना है उठेगा। एक दिन तो एक ही बार तो कर रहे हैं, बार बार थोड़ी कर रहे हैं। उठने दियो उनको। हाँ पूछिए, आप पूछ के सवाल पूछिए। और सर एक चीज और, बहुत लोग मुझे अपनी पर्सनल में मुझे क्वेरीज भेज रहे हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जवाब दीजिए, बोलो डॉक्टर के कहते हैं करके। नहीं सर, जिसको आपने जवाब देना है उसके आगे डाल दीजिए डॉक्टर के ये कहते हैं, आप जवाब दीजिए। एब्सोल्युटली। सर डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना था सर। डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं अजमल सर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरा एक 3 इयर्स पहले किडनी का ऑपरेशन हुआ था सर, एक किडनी मेरा निकाल दिए है। तो मेरे को क्या डर है कि अगर कुछ तो भी प्रॉब्लम रहने से, कुछ टैबलेट्स खाने से कुछ किडनी पे कुछ इफेक्ट होता क्या? बिकॉज ये काफी अलग अलग एंटीबायोटिक टैबलेट्स वो सब है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाह रहा था सर। कौन सी दवाई खा रहे हैं आप? क्या नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर मेरे को कोविड की दवाइयां मिलेंगी तो किडनी खराब तो नहीं हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। किडनी को कुछ इफेक्ट रहेगा क्या सब, ऐसा कुछ रहा? अरे आप सब प्रिकॉशन ले रहे हैं ना? हाँ मैं तो प्रिकॉशन, मेरे को डायबिटिक हूँ मैं। रहिए, जब हो कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर साहब से बात करिए, बताएंगे आपको। हाँ वही, क्योंकि चिंता छोड़ दीजिए। अभी आपकी एक किडनी पूरी फंक्शनल है ना आपकी? हेलो जी सर जी, अभी तो पूरा अभी कंट्रोल में है, डायबिटिक भी कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है। हाँ
प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा था कि अगर कुछ कल के दिन हुआ कौन जो बोल रहा है? टैबलेट रहते काफी हैवी टैबलेट आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं अजमल हसन सर, आपको 1.5 मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूँ, पूरी अजमल किताब में लिखो जी, सर। अजमल जी, एक किडनी जो आपकी थी वो तो चली गई। जी सर। मेरी किडनी आपके पास पड़ी है, वो मेरी किडनी है, उसकी चिंता मत करो, मेरे को करने दो, आगे चलो। बस बस आपका आशीर्वाद सर, आपकी दुआ सर, हमारी पूरी फैमिली आपके लिए दुआ कर रही है सर, आपके लिए। चलो ठीक बहुत है। अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो। देखो हमारा काम जो है ना 50% अगर डर निकाल दे तो आपकी बीमारी खत्म हो गई। 50% सब लोग डर के मारे हैं, मेरा काम सिर्फ डर निकालने का है, बाकी तो अपने आप रिकवरी होती है। आगे चलिए। हेलो। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद में अर्चना जी बोलेंगी और उसके बाद में डॉक्टर कालरा वोट ऑफ थैंक्स देके हेलो। सम अप करेंगे। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। या प्लीज, या वी कैन हियर यू। या हेलो डॉक्टर जी। Hello. हेलो। बोलिए। हेलो। सवाल पूछिए। बोलिए प्रीति जी। हाँ हेलो डॉक्टर, ये पापा जी को 4 जुलाई से बुखार आया था, उनको 7 जुलाई को एडमिट किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अभी भी उनका बुखार है ना 102 रह रहा है, और 280 फास्टिंग शुगर है उनका। प्रीति जी बार बार आप सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले निमोनिया है नहीं है? अगर निमोनिया है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर निमोनिया नहीं है तो ट्रीटमेंट वो डिफरेंट क्या हॉस्पिटल गवर्नमेंट है ना, वी कांट गेट एनी इंक्वायरीज। एक सेकंड, दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। दीज आर योर राइट्स, दीज आर योर राइट्स। यू कैन नॉट से कि हॉस्पिटल हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा। ओके। You write to our mediation cell, IRA will take it up. You can't do like that. You can't say कि मतलब लोगों के मन में क्या डर बैठ गया है कि मेरे पेशेंट को ले जाएंगे अस्पताल में और वापसी में या तो डेड बॉडी आएगी या वापस कर देंगे, इसके बीच में कुछ नहीं बताएंगे। What nonsense! You have a right to know. यही हो रहा है, और अभी जस्ट अभी पता चला है कि नाउ शुगर इज 340। Doesn't matter, पहले ये बताइए निमोनिया है कि नहीं है? That is the basic thing. सीटी स्कैन तो सब नॉर्मल आया, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। तो फिर इसका मतलब निमोनिया नहीं है, शुगर कंट्रोल करेंगे ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा, मतलब ये सिंपल सी चीज है। यू कांट से कि हमें कुछ बता नहीं रहे, आप पूछ नहीं रहे, बताएंगे क्या? वी आर स्टेइंग इन चेन्नई एंड दे आर इन नेल्लूर, तो भाई अब ये बात कोई तो होगा ना वहाँ पे नेल्लूर में, वो जाके पूछेगा, आपको हक के साथ पूछना पड़ेगा ना। हाँ जी, दिस इज योर राइट। अगर आपका राइट है तो आप पूछेंगे। हाउ कैन यू से कि वो बता नहीं रहे? सारा डॉक्टर पे ब्लेम कर देते हो कि डॉक्टर बता नहीं रहे, पूछते हो नहीं। डॉक्टर क्यों बताएगा? आके पूछोगे नहीं तो। सही बात। अभी देखो ना यार, जूही को कहीं से भी घुस के पूछ लेती है ना सवाल अपना। कहाँ है जूही? वो कहीं से भी घुस के अपना सवाल पूछ लेती है। जूही जैसा बनना चाहिए। पूछ जूही जल्दी से सवाल अपना। रोज डे जो है वो है ब्लड थिनर है, राइट? सुना चाहिए वहाँ पे डॉक्टर। कौन सा? रोज डे। हाँ, रोज डे कोलेस्ट्रॉल कम करती है। ये कहीं से भी कर लो, ये अपना घुस के सवाल पूछ लेती है। जूही जैसा बनो। थैंक यू सर। लेकिन सर मेरे फादर का सीआरपी भी 9 है। 9 हाँ, देखो एक के बाद में हाथ उंगली पकड़ी तो हाथ पकड़ लिया। सर प्लीज, रोज डे ब्लड थिनर मैं डॉक्टर से कोई और उन लोग के लिए रोज डे ब्लड थिनर नहीं है। ये ब्लड थिनर नहीं है। हाँ ओके सर। और ऐसे होने चाहिए। आपको सवाल निकालने हैं तो ऐसे निकलना चाहिए। पीछे पड़ जाओ, निकालोगे आप सवाल। चलो, I'll request Archana ji to say a few words and then Dr. Kalra to sum up. Excellent. Before I call Archana ji, can you please ग्रुप में किसी ने ऐड नहीं करा अपने आपको? डायबिटिक का ग्रुप है, लिंक साइट पे पोस्ट है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो लिंक में आप ऐड हो जाओगे। We will send information related to diabetic only. Kindly join the group. आपको सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप डायबिटिक्स में आ जाओगे। नहीं तो हमें एक एक करके डालना पड़ेगा, which will be very difficult. तो किशन चावला जी को भी मेरा नमस्कार। मैं अभी आपको नहीं बुलवा पा रहा हूँ। डॉक्टर अर्चना जी, देन कालरा जी। हाँ जी अर्चना जी। Thank you, Dr. Saab, for giving me this opportunity. And thank you everybody for coming. I hope आज के इस सेशन से आपका कुछ डर गया होगा, और ज़्यादा डर भगाना है तो सौरभ जी ने लिंक भेजा है और डॉक्टर साहब ने बताया, सौरभ जी ने भी बताया, कुछ नहीं करना है। मैं जब तक बोल रही हूँ आप लोग जल्दी जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए, आप अपने आप व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और व्हाट्सएप में आने के बाद आप लोग चैट कर सकते हैं, अपने क्वेरीज डाल सकते हैं और रोज दिन उसमें आपको जवाब भी मिलेगा। तो जरूर व्हाट्सएप में जाइए और करिए। और आज का टेक अवे है कि हम लोग डायबिटिक है, ठीक है,
डर लगता है सबको, बट डरने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को जो इसके उपाय हैं वो करने होंगे, जिसमें डॉक्टर साहब ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि निमोनिया वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन के लिए तो आप लोग अपने डॉक्टर से जो भी जिससे कंसल्ट कर रहे हैं वो करके ये वैक्सीन जरूर लीजिए। और जो भी निमोनिया को लेके डर है हमारे मन में, तो वो आपको फर्स्ट डे सिम्टम आते ही, एंड डॉक्टर साहब ने बोला जो डायबिटिक है वो लोग ऐसे ही बहुत केयरफुल रहते हैं, तो फिर आपको तो अब चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मतलब एक वो मिला कि मतलब आप लोग तो हमेशा खुद को इतना ध्यान रखते, तो थोड़ा भी सिम्टम देखते ही आप अपने डॉक्टर से बात करिए एंड देन गो फॉरवर्ड विद इट। बट इसमें डरने की बात नहीं है। जो हम लोगों को डर लग रहा था कि डायबिटीज हाई है, तो अगर हाई है तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना है। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये सेशन फिर होगा, तो प्लीज लुक आउट फॉर दिस। मॉर्निंग में डॉक्टर साहब सबसे रूबरू होते हैं 8 से 9 बजे, और इस जब भी आगे नेक्स्ट जब भी डायबिटीज के लिए आएंगे तो उसका मैसेज चला जाएगा। यूट्यूब में भी रहता है, फेसबुक में भी रहता है, इंस्टाग्राम में भी रहता है, ट्विटर में भी रहता है, तो लुक आउट ऑन दैट। और डॉक्टर साहब का नंबर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे याद करो और नंबर, वो एक्चुअली सही बात है। मैं डॉक्टर साहब को 1 वीक पहले तक एकदम नहीं जानती थी। हमारे घर में 3 पॉजिटिव आए, कैसे भगवान ने मेरे को एक वीडियो भेजा इनका, मुझे नहीं पता, इतने दिन तक नहीं आया, उसी दिन आया। मैंने वो वीडियो देखा, मैं फेसबुक में गई, वहां पे मैंने उनको एक मैसेज लिखा, मैसेज का एक आइकॉन था, मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ, मैंने वहां पे उनको मैसेज भेजा, इमीडिएटली मेरे पास मैसेज आया, इफ यू वांट टू नो मोर जॉइन दिस टुमारो मॉर्निंग बिटवीन 8 to 9। बस उसके बाद से मैं और मेरे हस्बैंड रोज फॉलो करते हैं उनको। काफी मन से डर निकला है, हमारी फैमिली बहुत खुश है। तो आप लोग भी जितने बार डॉक्टर साहब ने बताया, आप लोग फिर यूट्यूब में जाइए और देखिए, और अपने मन से सबसे बड़ी बीमारी और डायबिटीज को तो ऐसे भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले अपने मन से ये डर को भगाइए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थर्सडे को, यस, डॉक्टर कालरा भी बोलेंगे। थर्सडे को सब लोग जिनके घरों में NRIs हैं, थर्सडे विल बी ए half an hour lecture by me on Indian status of corona, and then we will have half an hour question answers by NRIs only. तो अगर आपके घरों में लोग बाहर रहते हैं तो they can join that program. All those people who are in outside India, they are worried about their parents and their relations in India, we will have a special session for them. We want at least one person from each country. So इसलिए कोशिश करो multiple countries से लोग वहाँ पर आएं उसके साथ में. And we will try, Saurabh, remind me if we can get some important person to join on that day. NRIs का है तो we will try to see if some person can also join as a guest on that day. Dr. Kalra. Thank you, Archana ji. You spoke very well. I think ये सबका जो है कोरोना का प्रॉब्लम जो है, जो इसके लोग जो डर रहे हैं ना, सबसे प्रॉब्लम जो है ये डर ही है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, वो हर रोज यही चीजें कहते हैं कि डरो नहीं प्लीज। आप खासकर ये डायबिटीज का एक ग्रुप है, सिर्फ आपने ये करना है कि अपना डायबिटीज को कंट्रोल करिए। जो आपके फिजिशियन जिससे आप ट्रीटमेंट अपना करा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो उन्होंने बताई होंगी कि डेली एक्सरसाइजेस, खाना कैसे खाना है, कितना खाना है और क्या क्या करना है, साथ में जो योग एक्सरसाइज है, सम मेडिटेशन, ये बहुत हेल्प करती हैं। जितना आप परेशान रहेंगे, एंजाइटी रहेगी आपके मन में, डायबिटीज उतना हिलेगी। तो डायबिटीज का गुड कंट्रोल, दवाई के साथ साथ आप रिलैक्स रहें, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डॉक्टर। एंड डॉक्टर साहब की वीडियो सारी अवेलेबल है एंड यूट्यूब पे, जो DR डॉक्टर के अग्रवाल के नाम से इनका जो यूट्यूब चैनल है, उस पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आप जब भी आपको समय मिलता है आप देखिए, और डर को जो है अपने मन से हटाइए। जब तक डर नहीं हटेगा, आपकी डायबिटीज भी फिर कंट्रोल भी है तो वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि जरा सा भी एंजाइटी लेवल, डर आपको बैठेगा, स्ट्रेस, तो उससे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबका इलाज एक ही है कि फॉलो द फिजिशियन इंस्ट्रक्शंस, और आप जो है अपना रेगुलर दवाई खाइए जैसे आपके फिजिशियन ने कहा है, एक्सरसाइजेस करिए, और कोविड से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थैंक्स वंस अगेन डॉक्टर अर्चना जैन जी और ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड SCFI टीम and Dr. Agarwal
he is probably maximum doing work on COVID. और कितने लोगों का गिनती नहीं कर सकते हम, कितने लोगों का डर इन्होंने मिटाया है. Again, thank you all for joining this session, and see you again next week same time. Some change will all let you know. And again, जैसे मैंने बताया कि लिंक में आप ज्वाइन जरूर करिए, लिंक रजिस्टर करिए, तो डायबिटिक ग्रुप में आप अपने आप आ जाएंगे. थैंक यू. थैंक यू. विवेक जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में कि यू फाइंड आउट ए वीआईपी फॉर दिस मीटिंग जो डायबिटिक है. आप मेरे से बात करके लेट अस आइडेंटिफाई वन वीआईपी हु इज डायबिटिक. He should join next week 7 o'clock, same time, same meeting, same address. We will all meet you. Same link, same everything. Thank you Kishan Chawla ji. Thank you everybody. आप सब लोगों को मेरा नमन. Thank you. टोटल कितने लोग आए सौरभ? एक सेकंड. It has crossed 300. Just wait. Let me see. 300 people have joined today. Very good. Thank you everybody. अच्छा, सैटरडे की मीटिंग फिक्स हो गई है सर. Sorry, 503 people have joined today in total. They came and went 500, and because I'm saying is because there are 417 new messages, that means number is more than 500. So 503 patients coming in one platform. I am happy that हमने कम से कम नहीं तो 500 into 10 5000 लोगों का डर मिटाया, which is very good, because each one of you are going to talk to 10 people to remove that fear. youtube.com/drkk Agarwal पे अभी जाएं right away. जैसे ही आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, YouTube में खोलिए youtube.com/drkk Agarwal, और ये नहीं तो कोई भी आप डॉक्टर KK अग्रवाल YouTube डालेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा. उस वीडियो को सब्सक्राइब करें तो आपको एक मिनट के वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आते रहेंगे. जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट होगा आप उसको देख सकते हैं. नमस्कार. थैंक यू.